Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today is the second lecture for pharmaceutical jurisprudence. Yesterday we was started with the pharmaceutical jurisprudence, and what we have seen yesterday, I would like to summarize. So yesterday we was started with our jurisprudence, and we have seen important milestone, important historical points from jurisprudence. After that we have seen the different pharmacopoeias. After that we have seen the different acts under the jurisprudence and respective penalties under that act. तो हर एक jurisprudence में जितने एक्ट है उसमें पेनल्टीज कितने हैं और किसके लिए कितना पेनल्टी है क्या है वो अपने देखा है. would not revise that again. After that we also seen different acts, their objective and year of passing. So that part also we have seen. So today we'll see the important part, that is nothing but the very important part, that is nothing but the different schedules under the Drug and Cosmetic Act 1940. Drug and Cosmetic Act 1940 was passed with the objective to regulate the import, manufacturing, sale, distribution of drugs in India. You know, so different schedules under Drug and Cosmetic Act 1940. very important, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. Different schedules under DNC Act and rules under Drug and Cosmetic Act 1940 and rules under 1945. So in the DNC Act you have two schedules. First is a schedules to the act. तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर दो शेड्यूल होते हैं. पहला शेड्यूल है आपका शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल टू द एक्ट, एंड दूसरा होता है शेड्यूल टू द रूल्स, शेड्यूल टू द रूल्स, शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल. तो शेड्यूल टू द एक्ट इज अ, in that you have two schedules, schedule 1 and schedule 2. Schedule 1 is a schedule first. Lot of time question has been asked, what is schedule first? It is the list of reference books for Ayurvedic, Siddha and Unani medicines. तो जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, तो all the formulations of Ayurveda, Siddha and Unani medicines, they have been described in the respective reference books for that practices. So that list of reference books is given under the schedule first of the DNC Act. Schedule second of the Drug and Cosmetic Act is nothing but the standards for import, manufacturing, sale, stock and storage of the drugs. Schedule second is related with the import. It is related with the import of manufacturing, import standards for import, manufacturing, sale, stock, storage of drugs. So schedule first list of reference books, schedule second is related with the import. ये क्या रखना है. Now schedules to the rules, schedules to the rules. तो schedule A क्या होता है. मान लीजिए आपका B.Pharm हो गया कंप्लीट और आपने GPAT के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है, तो या फिर नॉन GPAT भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपका एडमिशन होने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन. तो शेड्यूल ए क्या है, शेड्यूल ए शेड्यूल्स टू द रूल्स. अंडर दैट शेड्यूल ए इज नथिंग बट द ए फॉर एप्लीकेशन. आपको ऐसे रखना है ना. तो आपको एडमिशन लेना है तो पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है ना. तो शेड्यूल ए डिफरेंट
फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन टू अप्लाई, टू रिन्यू, टू ग्रांट एंड फॉर अदर एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन आते हैं। शेड्यूल ए में क्या है, सभी एप्लीकेशन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द, है ना, एप्लीकेशंस टू अप्लाई, टू रिन्यू, टू ग्रांट एंड अदर एक्टिविटीज। नाउ एक बार आपने एप्लीकेशन कर लिया तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपको बाद में क्या भरना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। तो शेड्यूल बी क्या है फिर, शेड्यूल बी इज नथिंग बट द फीस चार्ज्ड बाय CDL, fees charged by analysis, fees charged for analysis by CDL और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। तो एक बार आपने अप्लाई तो किया, बाद में क्या करना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। तो शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स, शेड्यूल बी एप्लीकेशन के बाद में क्या फॉर्म भरना है। तो शेड्यूल बी में पहले तो क्या है, एप्लीकेशन करना पड़ता है, शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन करने के बाद में आपको फीस भरना पड़ेगा। शेड्यूल बी फॉर फीस चार्ज्ड बाय CDL, ठीक है। शेड्यूल सी फॉर क्या होता है, सी फॉर केयर कर लो आप, सी फॉर केयर, शेड्यूल सी फॉर केयर। केयर किस करना है आपको, सो ऑब्वियसली अगर पेरेंटल प्रोडक्ट है आपका, इंजेक्टेबल्स है, तो उसका केयर करना पड़ेगा आपको। तो सी फॉर केयर, शेड्यूल सी मतलब केयर किसके लिए करना है, केयर है ना, केयर, यू हैव टू टेक केयर, एक्स्ट्रा केयर about the parental products. List of biologicals and parentals and other special product governed by special provisions under act. Now schedule C1, तो C1 क्या है, तो देखो यहाँ पे शेड्यूल सी क्या है, बायोलॉजिकल्स गिवन बाय इंजेक्टेबल, आपको याद रखना है, गिवन बाय इंजेक्टेबल रूट, बायोलॉजिकल and parentals given by injectable route. Schedule C1 क्या है, again same, list of other special product given by special provision, they are also biological product but they are known as non-parental or by orally given, कुछ लोग कैसे orally है, so you can say non-parental, आप यहाँ पे याद रखो non-parental। Schedule C is for parental, C is a non-parental. List of biological and special product under DNC Act governed by special provision, that is schedule C, that is injectable. Schedule schedule C होगा, schedule C1 same but non-parental, that's it. Now schedule D for drug कौन से drug भाई, schedule D drug कौन से drug, exempted, schedule D means drug लेकिन कौन से, exempted, तो class of drug exempted from the certain provisions under the act and extent and condition for exemption, है ना। D for drugs कौन से, exempted drugs, ये सब import के रिगार्डिंग है, imported, all these are for regarding import। तो drug, class of drug exempted from the certain provisions of the import under DNC Act, the extent and condition of exemption is also given under that schedule. So schedule D1 क्या है, undertaking by manufacturer or its representative, undertaking by manufacturer or its authorized agent to submit along with the application form for the obtaining a registration certificate for import। D1 में अंडरटेकिंग है, D2 में भी क्या है, अंडरटेकिंग ये है, D2 में क्या है, अंडरटेकिंग ये, undertaking of manufacturer or his authorized agent to be submitted along with the application form for obtaining a certificate of bulk drug। तो D क्या है, D1 क्या है, फॉर्मुलेशन है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ना, और फॉर्मुलेशन ड्रग उसका अंडरटेकिंग है, और अगर बल्क ड्रग का इंपोर्ट करना है उसका अंडरटेकिंग किसमें रहेगा, शेड्यूल D2। तो D exempted drug from import, D1 undertaking for formulation, and D2 is undertaking for bulk drug, undertaking from manufacturer or is representative। नाउ शेड्यूल E1, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। शेड्यूल E1, शेड्यूल E1 क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस है ना, लिस्ट ऑफ पॉइजनस
सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और एएचयू तक आप बोलते हो। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर एएचयू इज गिवन अंडर शेड्यूल ई ऑफ द डीएनसी एक्ट। शेड्यूल एफ क्या होता है? शेड्यूल एफ अगेन इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शेड्यूल एफ, रिमेंबर, इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन इन रिलेशन टू ब्लड बैंक और ब्लड कंपोनेंट। शेड्यूल एफ क्या है? शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद द ब्लड बैंक। यहाँ पे याद रखना है ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट्स। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन डीआई में भी और जीपैट नाइपर में। शेड्यूल F1 है ना, F1 क्या होता है? अभी ब्लड बैंक हो गया तो अभी आएगा वैक्सीन। तो शेड्यूल F1 क्या है? इट इज अ प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन एंटीसेरा डायग्नोस्टिक एजेंट्स। शेड्यूल F1 क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू वैक्सीन, सेरा, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक एजेंट। ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसको बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। नाउ शेड्यूल F2, F2 क्या है? शेड्यूल F2 एज पर द डीएनसी एक्ट, F2 होता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग से आपके इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंशन किए शेड्यूल F2 में अंडर डीएनसी एक्ट। तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग शेड्यूल F2। F3 क्या है? शेड्यूल F3 अभी आएगा अम्बिलिकल टेप्स, ऐसे ही याद रखना है इसको सीक्वेंस वाइज। F3 इज अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। शेड्यूल F नाउ आएगा ऑप्थेल्मिक, ये भी बहुत बार पूछा है। शेड्यूल F इज स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, है ना, बाकी सब ना। शेड्यूल है ना, तो शेड्यूल डी क्या है? एग्जेम्प्टेड ड्रग। D1 क्या है कि अंडरटेकिंग by manufacturer or his representative while application, है ना, for the import of formulation। D2 क्या है? for import of bulk drug undertaking है, ठीक है। E1 क्या है? list of poisonous substances under the ASU। F क्या है? operations related to blood bank and component। F2 क्या है? vaccines के बारे में। F3 क्या है? F1 क्या है? वैक्सीन के बारे में। F2 क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 क्या है? F3 स्टैंडर्ड्स ऑफ अम्बिलिकल टेप एंड F क्या है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। और शेड्यूल जी क्या है? शेड्यूल जी इज अ ड्रग, है ना, डेंजरस ड्रग, उसको बोलते हैं डेंजरस ड्रग्स। ड्रग्स नीड टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसके ऊपर एक वार्निंग रहता है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस ड्रग एक्सेप्ट मेडिकल सुपरविजन, है ना। शेड्यूल जी मतलब क्या? डेंजरस ड्रग्स। और शेड्यूल एच मतलब क्या? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल एच इज अ लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल एच, most of the drugs comes under the schedule H. Schedule H is nothing but the list of prescription drugs. नेक्स्ट देखो शेड्यूल जे। शेड्यूल जे क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ डिसीजेस गिवन अंडर द शेड्यूल जे। इट इज अ लिस्ट ऑफ डिसीज गिवन अंडर द दिस शेड्यूल। A drug should not claim or should not purport to cure the diseases listed under शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे के अंदर डीएनसी के एक्ट में शेड्यूल जे के अंदर कुछ डिसीजेस दिए, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, इपिलेप्सी हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, राइट। तो और बहुत सारे डिसीज दिए। तो ए ड्रग शुड नॉट क्लेम और शुड नॉट पर्पट टू क्योर दिस डिसीजेस, क्योंकि इनका क्योर है ही नहीं। इपिलेप्सी हो गया तो है ना, ऐसा नहीं कि कोई बाबा आके बोलेगा आपको मैं मेरी क्लियर करवा दूंगा, कैंसर क्लियर करवा दूंगा, दैट इज अ टोटली फेक। शेड्यूल जे इज द लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स, है ना, a drug for which should not claim or purport to cure, that is given under the schedule J। शेड्यूल के क्या होता है? शेड्यूल के इज अ ड्रग exempted from certain provisions related to manufacturing। exempted drug provision, शेड्यूल के ड्रग exempted from the certain provisions
रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर। शेड्यूल एम क्या है? जीएमपी रिक्वायरमेंट। जीएमपी रिक्वायरमेंट, शेड्यूल एम बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके अभी। शेड्यूल एम जीएमपी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें सब आएगा, कंप्राइजिंग योर रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रोसेस, एवरीथिंग। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एलोपैथी, यहाँ पे याद रखना है आपको, ये है आपका एलोपैथी के लिए, मॉडर्न ड्रग के लिए। तो शेड्यूल एम जीएमपी फॉर एलोपैथी। शेड्यूल एम वन, देखो शेड्यूल एम वन क्या है, तो अभी एलोपैथी हो गए तो अभी क्या आएगा? होम्योपैथी उसके बाद में। शेड्यूल एम टू, सॉरी शेड्यूल एम वन इज फॉर जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी। शेड्यूल एम जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ एलोपैथी। शेड्यूल एम वन जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ होम्योपैथी। अभी होम्योपैथी के बाद में शेड्यूल एम टू आएगा कॉस्मेटिक, जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्मेटिक, जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल एम टू याद रखना है। शेड्यूल एम थ्री अभी आएगा मेडिकल डिवाइसेस, उसके सीक्वेंस में याद रखना है आपको। शेड्यूल एम जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर एलोपैथी। शेड्यूल एम वन जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर होम्योपैथी। शेड्यूल एम टू जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर है ना कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल एम थ्री जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग टाइप के भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग शेड्यूल विद द रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्शन, ऐसा है ना, याद रखना है। नाउ शेड्यूल एन, इसको याद कैसे रखना है? एन फॉर न्यू, एन फॉर न्यू। तो न्यू क्या करना है आपको? चल रहा है बी फार्म, बी फार्म के बाद में आपका जीपैट तो होने नहीं वाला है, तो फिर आप ऑब्वियसली मेडिकल डालोगे, तो न्यू फार्मेसी ओपन करोगे। शेड्यूल एन फॉर न्यू, व्हाट इज न्यू? न्यू फार्मेसी। तो it is a list of minimum equipment required to run a pharmacy. List of है ना, list of minimum equipment required to run a pharmacy efficiently. भाई शेड्यूल ओ, एन के बाद में आता है ओ। ओ क्या है? शेड्यूल ओ एज पर द डीएनसी एक्ट, तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जैसे आपका फिनॉल हो गया है ना, आपका डेटॉल, फिनॉल, जो भी अल्कोहल भी है उसमें आपका सब कुछ डिसइंफेक्टेंट जितना भी आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आईपीए, पोइडिन, आयोडीन, तो बीटाडीन। तो शेड्यूल ओ स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट बहुत बार आ चुका है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नाउ शेड्यूल पी, शेड्यूल पी क्या होता है? शेड्यूल पी, पी फॉर पीरियड, पी फॉर क्या होता है? पीरियड। कौन सा पीरियड? लाइफ पीरियड। तो P for life period of drug means shelf life of your drug. So schedule P is a life period of drugs, shelf life of drugs. Schedule P life period of drug. उसके बाद में P1 होता है, शेड्यूल P1 है ना। तो P for again पैक है ना, P1 पैक साइज कितने चाहिए आपको? पैक, एक पैक चाहिए, पैक साइज ऑफ ड्रग। कुछ ड्रग जो है दे आर हैविंग डिफरेंट पैक साइज, जैसे नॉर्मली आप अगर एक स्ट्रिप लेने जाओगे टैबलेट का, उसमें 10 टैबलेट्स रहेंगे, बट सर्टन ड्रग्स दे हैव डिफरेंट पैक साइज, जैसे एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन का स्ट्रिप अगर लेने जाओगे आप तो वो 14 टैबलेट का होता है। जैसे आपको अल्बेंडाजोल टैबलेट चाहिए, अल्बेंडाजोल टैबलेट का अगर स्ट्रिप देखेंगे तो एक ही टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है ना। अल्बेंडाजोल सिरप, तो उसका एक 10 ml का एक सिरप आता है, उतना ही देना पड़ता है, एक ही डोज ही उतना है उसका, लाइकवाइज दैट। तो शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल P1 पैक साइज ऑफ ड्रग। ओके, चलिए नेक्स्ट शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू क्या है? क्यू फॉर कोल टार डाइज, ऐसा है देखो, शेड्यूल क्यू फॉर कोल टार एंड डाइज। So schedule Q consists of a list of colors, dyes, pigment, coal tar dyes which are permitted in the cosmetic and soaps. Drugs also. So list of color, coal tar dyes, pigments permitted for drugs and cosmetic. Schedule R. Schedule R. Next होता है schedule R. R for आपको याद रखना है रबर। रबर से क्या बनता है? रबर से बनता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक कॉन्डम्स एंड योर डायफ्राम। तो रबर से क्या बनता है? तो शेड्यूल आर फॉर रबर, रबर से बनेगा आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम्स एंड योर
diaphragm. So standards for condoms of rubber latex and mechanical contraceptives, that is given under Schedule R of a DNC Act, Drug and Cosmetic Act. Now Schedule R1. Schedule R1 क्या है? Standards for medical devices. तो रबर से सिर्फ आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं बनता, रबर से कुछ मेडिकल डिवाइसेस भी बनते. तो R1 इज अ स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस. चलो, है ना. नेक्स्ट होता है शेड्यूल एस. यस, है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक. ये भी बहुत बार पूछा है. शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, है ना, है ना. उसके बाद में आता है एस के बाद में टी, शेड्यूल टी. देखो शेड्यूल एम क्या था? जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर एलोपैथी. शेड्यूल एम1 क्या था? जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर होम्योपैथी. शेड्यूल एम2 क्या था? जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्मेटिक. शेड्यूल एम3 क्या था? जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस. ठीक है, तो वहाँ पे तो आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी तो आए ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा. शेड्यूल टी क्या है? जीएमपी रिक्वायरमेंट, है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट फॉर एएसयू ड्रग, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी. ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स. नाउ शेड्यूल यू, शेड्यूल यू एंड यू1. शेड्यूल यू एंड यू1, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर्स टू बी शोन, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन अ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड. ये एनालिटिकल. यू1 में क्या है? पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड. रिकॉर्ड है यू एंड यू1, है ना. एक में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, है ना. एंड शेड्यूल यू1 क्या है? पर्टिकुलर्स टू बी शोन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मुलेशन. शेड्यूल वी क्या है? शेड्यूल वी, standards for patent and proprietary medicine. So if anybody is engaged in the formulation of medicine, he don't want to disclose the data, he don't want to disclose the ingredient of formulation. So such kind of formulation are known as a patent and proprietary medicine. Schedule B, patent and proprietary medicine, है ना. जिंदा तिलिस्मात एक फॉर्मुलेशन आता है आपको ना, मेडिकल भी, जिंदा तिलिस्मात, है ना, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन. शेड्यूल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर जेनेरिक ड्रग्स ओनली, है ना. तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम्स ओनली, शेड्यूल डब्ल्यू. कौन से ड्रग है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एस्पिरिन है, मतलब एस्टिन सैलिसिलिक एसिड है, पिप्रेजिन है, अल्बेंडाजोल है. उसके बाद में आपका जितना भी फेरस का सॉल्ट है वो सब क्या है? जेनरिक है, मतलब दैट शुड बी मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ओनली. ओके. शेड्यूल एक्स क्या है? एक्स मतलब क्या? आपका एक्स नहीं या फिर आपकी एक्स नहीं. एक्स क्या होता है? इट इज अ सिंबल फॉर नो, है ना. क्रॉस किया मतलब नो, सिंबल फॉर नो. सो एक्स मतलब क्या? सो एक्स मतलब नो. सो गवर्नमेंट विल से नो और अवॉइड द नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. शेड्यूल एक्स क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स. शेड्यूल वाई क्या है? शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स. याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसके. गाइड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन अ क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए न्यू ड्रग. तो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दीज आर द शेड्यूल्स, ना. वेरी इंपॉर्टेंट. शेड्यूल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है. आई विल नॉट रिपीट. मैंने ट्रिक क्या बोला है? ट्रिक भी बोला है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना पड़ता है, बाद में फीस भरना पड़ता है, बाद में केयर, ना, डी फॉर ड्रग एग्जम्प्टेड, देन टू रिक्वायर्ड मिनिमम. पूरा मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, है ना. तो ये कुछ ट्रिक्स है, बट इजी है, ये जरूरत नहीं है आपको. नाउ डिफरेंट फॉर्म्स अंडर द DNC एक्ट. ये फॉर्म्स के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. डिफरेंट फॉर्म्स यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अंडर DNC एक्ट. तो फॉर्म नंबर एंड उसका यूज क्या है, उसका कमेंट क्या है, ऐसा लिस्ट बना के रखा है हमने. तो पहला है फॉर्म नंबर 1.
फॉर्म नंबर 1, सो इट इज अ मेमोरेंडम टू द सीडीएल, है ना। सीडीएल को एक मेमो मिलेगा एनालिसिस के लिए, मेमोरेंडम टू द सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, क्या है फॉर्म नंबर 1 ना, याद रखना है। फॉर्म नंबर 2 क्या है ना, सीडीएल को अपने मेमोरेंडम दे दिया कि ये एनालिसिस करना है, तो सीडीएल एनालिसिस करने के बाद में क्या देगा, रिपोर्ट देगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो फॉर्म नंबर 2 में क्या आएगा फिर, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द सीडीएल, है ना। तो फॉर्म नंबर 1 मेमोरेंडम टू द सीडीएल, फॉर्म नंबर 2 COA ऑफ एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ना फॉर्म नंबर 2। तो फॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये नहीं है। फॉर्म नंबर 8 क्या है, फॉर्म नंबर 8 एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू इंपोर्ट ए ड्रग एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स। तो फॉर्म नंबर 8 में क्या है कि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू गेट अ लाइसेंस टू इंपोर्ट ए ड्रग, है ना। इंपोर्ट करना है ड्रग आपको ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे ही नहीं इंपोर्ट कर सकते। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट ए ड्रग एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स के लिए अलग लगता है। तो अदर देन शेड्यूल एक्स ड्रग का कोई भी आपको अप्लाई इंपोर्ट करना है, कौन सा भी ड्रग एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स ड्रग्स, so you have to apply in a form number 8 and you will get license in a form number 10. License किसमें मिलेगा आपको, you will get a license in the form number 10. You have to apply in a form number 8 for the import of drug. फॉर्म नंबर 8A क्या है, फॉर्म नंबर 8 क्या है, एप्लीकेशन फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग अदर देन शेड्यूल एक्स। तो फॉर्म 8 क्या है, 8A क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू इंपोर्ट द शेड्यूल एक्स ड्रग, license is given in the form 10A. फॉर्म नंबर 9 क्या है, फॉर्म नंबर 9 अंडरटेकिंग अकम्पनाइंग एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस। दिस अंडरटेकिंग given by importer, that undertaking is given in the form 9. फॉर्म 11 क्या है, लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग, है ना, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग, है ना। एप्लीकेशन इज मेड इन द फॉर्म नंबर 12। तो फॉर्म नंबर 11 क्या है, लाइसेंस, फॉर्म नंबर 11 क्या है, फॉर्मेट ऑफ लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग। एप्लीकेशन किस में करना है, फॉर्म नंबर 12 में अप्लाई करना है। फॉर्म नंबर 11A, ये तीनों भी लाइसेंस है। फॉर्म नंबर 11 लाइसेंस टू इंपोर्ट ए ड्रग बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, तो उसका एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर्म नंबर 12AA। फॉर्म नंबर 12A क्या है, एप्लीकेशन फॉर द परमिट टू इंपोर्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर अ पर्सनल यूज एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन द फॉर्म नंबर 12B ना। किसका लाइसेंस किसमें है, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक दो बार रिपीटेडली पढ़ो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 13 इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ PNC एक्ट, मतलब COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ DNC एक्ट। फॉर्म नंबर 13A again certificate of test or analysis by government analyst under section 3 of, मतलब फॉर्म नंबर 13 COA by government analyst under section 25A of DNC Act। फॉर्म नंबर 13A क्या है, अगेन COA of analysis by government analyst under section 33 of H of a drug and C ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो फॉर्म नंबर 14A क्या है, अगेन एप्लीकेशन फॉर एनालिसिस ऑफ ए ड्रग परचेस्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ DNC एक्ट, सर्टिफिकेट इज इश्यूड इन द फॉर्म 14B। इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा आपको। फॉर्म नंबर 15 इट इज ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन नॉट टू डिस्पोज स्टॉक इन हिज पोजीशन, मतलब मान लीजिए कि आपके मेडिकल के ऊपर छापा पड़ गया ड्रग इंस्पेक्टर का, और ड्रग इंस्पेक्टर ने बोला कि इसके बाद में ये जो स्टॉक है इसका स्टॉक आपको
फेंकना नहीं है या फिर गायब नहीं करना है, तो उसके लिए एक आपको ऑर्डर देगा, है ना। वो ऑर्डर क्या रहेगा, फॉर्म नंबर 15 के ऊपर रहेगा। फॉर्म नंबर 15 में मतलब ये फॉर्मेट है टू ऑर्डर द say for example to order the owner of medical to do not dispose of the stock of his possession. Form number 16, receipt of seized stock. रिसिप्ट ऑफ सीज्ड स्टॉक, ऐसा नहीं कि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, छापा मारेगा, कुछ आपका स्टॉक सीज करेगा और आपको कुछ उसका प्रूफ नहीं रहेगा, तो वो बकायदा आपको प्रूफ देगा। ही विल गिव यू रिसिप्ट ऑफ सीज्ड स्टॉक और कॉस्मेटिक्स और रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल। आपके मेडिकल में से, आपके इंडस्ट्री में से जो भी स्टॉक सीज किया, जो भी मटेरियल सीज किया, जो भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स लिए, उसका बकायदा रिसिप्ट देगा ड्रग इंस्पेक्टर। फॉर्म नंबर 17, इट इज अ इंटीमेशन टू द पर्सन फॉर टेकिंग ए सैंपल। तो मतलब सैंपल लेने से पहले वो आपको इंटीमेट भी देगा, इंटीमेशन टू ए पर्सन फॉर टेकिंग ए सैंपल। सैंपल लेने से पहले वो फॉर्म नंबर 17 के ऊपर आपको सूचना भी देगा, इंटीमेशन भी देगा। फॉर्म नंबर 17A, रिसिप्ट ऑफ सैंपल ऑफ a drug or cosmetic taken and price is tendered, मतलब वो प्राइस भी देगा आपको। फॉर्म नंबर 18 and 18A, मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। फॉर्म्स शेड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स सभी नहीं लेकिन शेड्यूल्स तो सभी इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर्म नंबर 19, ये सब डिटेल के चालू हो गया अभी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। फॉर्म नंबर 19, 20, 21, ऑल दिस फॉर्म्स दे आर रिलेटेड विद द, है ना, दे आर रिलेटेड विद द सेल ऑफ ड्रग आइदर बाय होलसेल और रिटेल, है ना। देखो फॉर्म नंबर 19, अगर आपको मेडिकल ओपन करना है तो उसका एफडीए से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉर्म नंबर 19, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल और एग्जिबिट और टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग अदर देन शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के बजाय बाकी सारे ड्रग जो है, तो उसके लिए सेल करने के लिए एप्लीकेशन, है ना, ग्रांट, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। आपको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं, मेडिकल चालू करना है, तो फॉर्म नंबर 19 में अप्लाई करना पड़ता है ना। उसके बाद में फॉर्म नंबर, है ना, आपको फॉर्म नंबर 20 भी लगता है ना, 2-3 फॉर्म लगते हैं, 21 लगता है 21। फॉर्म नंबर 19 अदर देन शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल CC1 के लिए अलग फॉर्म है ना, होम्योपैथी के लिए अलग है, मतलब एक ही मेडिकल में सब कुछ नहीं बेच सकते आप, के लिए लाइसेंस लगता है। नाउ फॉर्म नंबर 19A, फॉर्म नंबर 19A, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग बाय रिटेल by dealer who does not engage the qualified person. License is issued in the form number 20A. 19A में एप्लीकेशन करना पड़ता है आपको, जहाँ पे आपका लाइसेंस जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया और वहाँ पे आपके पास वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन नहीं है ना, उस टाइम पे बाद में आने के बाद में अप्लाई करना पड़ता है और ग्रांट इसमें आता है 20A में। फॉर्म नंबर 19AA, तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट or renewal of license to sell, stock, exhibit or distribute drugs by motor vehicle. Motor vehicle license is issued in the form number 20BB. Form number 19B क्या है? Application for license to sell, to stock, to exhibit, distribute a homeopathic medicine. देखो होम्योपैथी भी बेचना है आपको, 19B में अप्लाई करना पड़ता है, license in the form of 20E.
For the retail, you will get a license in the form of 20C, and for wholesale, you will get a license in a 20D form, and renewal का आएगा 20E में. Form number 19C, application for the grant or renewal of license to sell, stock, exhibit or distribute Schedule X. तो आपके लिए रिटेल के लिए कितने लाइसेंस लगते हैं? रिटेल के लिए आपको पहला लगेगा 19, है ना. रिटेल के लिए पहला लगता है 19, दूसरा लगता है आपको, है ना, 19C, है ना, और लगता है 20, है ना, 20 भी लगता है, 20 भी लगता है. ये तीसरा लाइसेंस. 3 लाइसेंस लगेंगे. अगर आपको उसमें होम्योपैथी भी रखना है तो ये भी लगेगा. होम्योपैथी के लिए ये अलग से लगेगा, है ना, है ना. फॉर्म नंबर 20 का लाइसेंस टू सेल और स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग अदर देन शेड्यूल CC1 एंड X. फॉर्म नंबर 20 भी लगता है आपको. आजकल 19 नहीं लग रहा है, फॉर्म नंबर 20 ही लेते हैं. फॉर्म नंबर 20B, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट अ ड्रग बाय होलसेल ड्रग अदर देन CC1 एंड शेड्यूल X. तो ये होलसेल के लिए लगता है 20 होलसेल के लगता है 20B. फॉर्म नंबर 21, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट शेड्यूल CC1 बाय रिटेल. तो आपको 21 एक लाइसेंस लगेगा. आपको 19C लगेगा, आपको 20 लगेगा, है ना. 21A क्या है? रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग बाय रिटेल of schedule CC1 for dealer not engaged in the services of qualified personnel. ये सभी शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है ना. शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एटलीस्ट रिटेल में कितने फॉर्म लगते हैं वो मालूम होना चाहिए. होलसेल में कितने फॉर्म लगते हैं वो मालूम होना चाहिए. क्वेश्चन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. Now next is nothing but the form number 21B. So wholesale license for schedule CC1 drug. Form number 21B. Form number 21B क्या है? Wholesale license for schedule CC1 drug. Yeah. Form number 21BB. Wholesale license for schedule CC1 drug and sell using motor vehicle. अगर wholesaler motor vehicle से sell कर रहा है तो Form number 21BB, wholesale license for schedule CC1 selling through a motor vehicle. Form number 21C, renewal license for retailer. रिटेल का रिन्यू करना है आपको तो फॉर्म नंबर 21C में एप्लीकेशन करना है. फॉर्म नंबर 21CC फॉर रिन्यूअल ऑफ होलसेल लाइसेंस बाय सेल ऑफ मोटर व्हीकल. अब फॉर्म नंबर 24 क्या है? application or grant or renewal of manufacturing license other than schedule CC1 and X. तो schedule CC1 X के बजाय, है ना, जो दूसरे ड्रग है तो आपको मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस में देखो फॉर्म नंबर 24 में अप्लाई करना पड़ता है टू गेट अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर देन शेड्यूल CC1 एंड X ड्रग. शेड्यूल CC1 के लिए और शेड्यूल X के लिए अलग लाइसेंस. नाउ लाइसेंस इज इश्यूड इन द फॉर्म 25. अगर आप एलोपैथी के मैन्युफैक्चर हो, अगर आपको एलोपैथिक ड्रग मैन्युफैक्चर करना है, यू हैव टू अप्लाई इन फॉर्म नंबर 24. यू विल गेट अ लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 23. नाउ फॉर्म नंबर 24 A B C D E इसके एक्सटेंशन है and these are for application for loan license, then repacking license, homeopathic, ayurvedic money, loan license for traditional medicinal system, and license is issued in the 25 A B C D respectively. तो लोन लाइसेंस है या फिर आपका रिपैकिंग लाइसेंस है
लोन लाइसेंस, अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, you don't have your own manufacturing facility, but still you are interested in the manufacturing, you can apply for loan license and okay, लोन लाइसेंस मिलेगा आपको, और आप जहाँ से भी मर्जी से आपको बना के लाना है वहाँ से बना के ला सकते हो, बेच सकते हो. Nowadays these three companies are doing same thing. फॉर्म नंबर 24 या एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग. तो शेड्यूल एक्स ड्रग, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो फॉर्म नंबर 24 है, एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग, लाइसेंस इज गिवन इन द फॉर्म 25 F. फॉर्म नंबर 26 क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग. फॉर्म नंबर 26 E1 या GHI, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ GMP फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, है ना. रिन्यूएबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग, ब्लड बैंक, है ना, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल वैक्सीन सेरा CC1 मैन्युफैक्चरिंग, ब्लड प्रोडक्ट, ये सब 26 में हो रहे. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिफरेंट CDL and their functions, different central drug laboratories and their function. तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना, बहुत बार आ चुके. लोकेशन कहाँ पे है, ये फैक्ट्री कहाँ पे है, उसका काम क्या है. तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. पहला है देखो आपका CRI, मतलब क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट. कहाँ पे है ये, कसौली में है, हिमाचल प्रदेश में. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द कसौली, हिमाचल प्रदेश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. नाउ व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन ओवर देयर, so they are engaged in the analysis of biological such as vaccines, toxins, sera, toxics, also bacteriophages, surgical sutures and ligatures. तो ये सब बायोलॉजिकल के टेस्टिंग के लिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, हिमाचल प्रदेश. सेकंड है आपका देखो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, लोकेटेड एट इज्जत नगर और मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश. सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सी, है ना, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, इज्जत नगर और मुक्तेश्वर, इसका नेम किया है. तो हियर इट इज दे आर एंगेज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स फॉर एनिमल यूज. वेटरनरी किसके लिए होता है, एनिमल के लिए. नाउ थर्ड वन इज अ सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी और CIPL, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, लोकेटेड एट गाजियाबाद UP. ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. वेयर दे यूज टू टेस्ट ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कॉन्डोम्स, है ना. फोर्थ है आपका देखो, चौथा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, और इसको और भी बोलते हैं पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी. पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ, है ना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, इसका ही ब्रांच है. यहाँ पे क्या टेस्टिंग होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन. नाउ फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद. यहाँ पे क्या टेस्ट होता है, आपको मालूम है, ऊपर भी देखा है अपने, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कॉन्डोम्स. नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, IIT न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली. यहाँ पे क्या टेस्टिंग होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन रिंग्स,
याद रखना। नाउ laboratory for serologist and chemical examiner to the government of India. Laboratory of serologist and chemical examiner, यहाँ पे क्या है, वेनरल डिसीज रेफरेंस लेबोरेटरी VDRL, टेस्ट होता है ना आपका VDRL टेस्ट, यहाँ पे होता है वेनरल डिसीज रेफरेंस लेबोरेटरी, एंटीजन फंक्शन है ना, एंड फंक्शन ऑफ सीडीएल इज कैरिड आउट ओवर हियर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज है, उसका मेरे बुक में भी दिया है ये चार्ट, तो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ पर्टिकुलर्स टू बी शोन ऑन द लेबल। ये हर एक शेड्यूल जो है उसके ऊपर क्या क्या लेबल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको, तो यहाँ पे आया समराइज्ड। ये और 2 लेक्चर होंगे आपके जूरिस्प्रूडेंस के। जूरिस्प्रूडेंस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट विल टेक एटलीस्ट 4-5 लेक्चर, और वो भी मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो कैटेगरी एंड स्टेटमेंट, तो शेड्यूल एच ड्रग, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग जो है उसके ऊपर क्या है ना, क्या क्या लिखे होना चाहिए। सो शेड्यूल एक्स ड्रग शुड हैव RX सिंबल, शेड्यूल एक्स ड्रग शुड हैव RX सिंबल ऑन अ लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द स्ट्रिप, RX सिंबल। और जो भी आपका कंटेनर है, अगर बॉटल है तो उसका कंटेनर होता है बॉक्स, RX ऑन अ लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ लेबल। एंड उसके बाद में शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग, शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग क्या है, शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग that is to be sold by retail on a prescription of registered medical practitioner only, है ना। schedule H RX on a top corner of label, and warning that is to be sold by retail on a prescription of RMP only. now अगर शेड्यूल C ड्रग है उसके ऊपर क्या रहेगा वार्निंग, शेड्यूल G के ऊपर क्या रहेगा वार्निंग, मैंने बोला शेड्यूल G मतलब डेंजरस ड्रग, उसके ऊपर रहता है वार्निंग कॉशन। Now, caution, it is dangerous to take this prescription except under medical supervision. That's why dangerous drug. Now, schedule X. Schedule X का ड्रग है, अगर नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग है ना, फॉर इंटरनल यूज, तो उसके लिए क्या होगा, ये सिंबल रहेगा NRX। इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो NRX सिंबल है ना ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेबल, एंड देन शेड्यूल X ड्रग वार्निंग रहेगा, वार्निंग ये है टू बी सोल्ड बाय रिटेल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बाद ही इसको भेजना है। शेड्यूल एक्स ड्रग should have XRX red ink on the label which is applicable for bulk drug। अगर बल्क ड्रग है आपका तो उसको भी लेवल रहता है XRX। NRX किसमें, फॉर द फॉर्मुलेशन, और XRX फॉर द बल्क ड्रग। शेड्यूल C, शेड्यूल C क्या है, बायोलॉजिकल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। प्रॉपर नेम आफ्टर द ओके, प्रॉपर नेम ऑफ ड्रग इन एडिशन टू है ना, in addition to the product and proprietary name, proper name after the addition of in addition to the product and proprietary name, then license number, batch number, lot number, है ना, statement of potential in unit, मैंने मतलब उसका डोज, मैन्युफैक्चरर्स नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टेटमेंट फॉर द टेस्ट, मैक्सिमम टॉक्सिसिटी क्या है, एक्सपायरी डेट, नेचर ऑफ प्रिजर्वेटिव एंटीसेप्टिक एडेड, प्रिकॉशंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। ये शेड्यूल C वर्क के ऊपर होना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट पे देखेंगे अभी। आपका पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर है तो उसके ऊपर क्या लेबल होना चाहिए, व्हाट इज द लेबलिंग
कंडीशन फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके, उसके ऊपर क्लियरली होना चाहिए मेंशन, तो पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन्स फॉर प्रोफिलैक्टिक और ऑर्थोपेडिक यूज। अगर प्रोफिलैक्स के लिए है तो उसके ऊपर ये लिखेगा फॉर प्रोफिलैक्टिक यूज ओनली, है ना। अगर ट्रीटमेंट के लिए तो उसके लिए आएगा थेरापेटिक यूज ओनली। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है लास्ट ईयर ना। ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो भी है उसके ऊपर वार्निंग क्या रहता है, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है। इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस, if irritation persists or increases, discontinue the use and consult the physician। ये वार्निंग होता है, एंड उसके बाद में स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज। इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। वेटरनरी के लिए जो मेडिसिन है उसके ऊपर मेडिसिन फॉर वेटरनरी पर्पज, तो सिंबल रहेगा उसका, सिंबल ऑफ एनिमल डिपिक्टेड ऑन लेबल। जो एनिमल रहता है उसका सिंबल रहता है ग्रीन में, एंड उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ऐसा क्लियरली लिखा होना चाहिए। फिजिशियन सैंपल, जो मेडिसिन कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दे विल आल्सो मैन्युफैक्चर सैंपल्स फॉर फिजिशियन, so in that they should clearly mention physician's sample not to be sold, physician's sample not to be sold। ये बेचने के लिए नहीं है, ये डॉक्टर को देने के लिए। सो रिमेनिंग पॉइंट्स विल टेक टुमारो, कल अपन बाकी जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट लेंगे। कुछ इथिक्स है, मोरल्स है, वो लेंगे। उसके बाद में बहुत सारा पार्ट है, डेफिनेशंस है, हर एक एक्ट के अंदर डेफिनेशंस दिए है। व्हाट डू मीन बाय ड्रग कॉस्मेटिक, व्हाट डू मीन बाय कॉस्मेटिक, व्हाट डू मीन बाय अडल्टेटेड ड्रग, व्हाट डू मीन बाय स्पुरियस, है ना, ड्रग कॉस्मेटिक, है ना, ये सब का डेफिनेशंस है। उसके बाद में हर एक एक्ट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो अपन लेंगे। तो सी टुमारो, मतलब, है ना, ड्रग एंड आपका फार्मेसी एक्ट के अंदर मेंबर्स है, डीटीएबी के मेंबर्स, पीसीआई के मेंबर्स, वो सब अपन देखेंगे कल। टुमारो विल सी अगेन।